اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھیں تو یہ کافی سملر تھا جو BLA نے پاکستان میں بلوچستان کے اندر ٹرین کے اوپر کیا تھا. ابھی تک جو سامنے آیا وہ صرف ایک ہی گروپ آیا, دی ریزسٹنس فورس گروپ. اس نے یہ اس کو ذمہ داری قبول کی ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں پتا, ٹوٹلی ان نون ہے. اگر یہ انسیڈنٹ پاکستان میں اور انڈیا میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف مائنڈ کیوں جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف الزامات لگائیں؟ تو کیا ان کو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے تھی کہ اس ایریا کو کور کر کے رکھنا؟ ٹھیک ہے, کنٹریز ہمارے ڈفرینٹ ہیں, کنٹریز ہمارے الگ ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا سوچنے کے لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو ہسٹری میں ہماری آپس میں وارز ہو چکی ہیں 65 میں, 71 میں, اور اس کے بعد جو کچھ چھوٹے موٹے اٹیکس ہو چکے ہیں, اس کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا آج تک؟ پچھلے کچھ بیتے 5 سالوں سے پاکستانی ملٹری اور انڈین ملٹری کا آپس میں کسی قسم کا کلیش نظر نہیں آیا. LOC پہ اور بارڈرز کے اوپر کافی پیسفل انوائرمنٹ دیکھنے کو مل رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈپلومیٹیکلی دیکھا جائے آپس میں پولیٹیشنز کا جو ریلیشن تھا وہ کافی زیادہ کشیدہ تھا. جیسے انڈین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا ٹریول نہیں کیا اور ایک دوسرے کو ویزا دینے میں کافی زیادہ مشکلات تھی, ٹریڈ بھی جو ہے اب کافی زیادہ کم تھی. لیکن حال ہی میں اب کشیدگی اتنی کہ زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آج ہی کی ایک تازہ ترین خبر ہے کہ انڈیا نے تو بالکل ویزاز بند کر دی ہیں اور جو ہائی کمیشن کے 55 ممبرز کی تعداد تھی وہ کم کر کے 30 کر دی ہے. پاکستانی ملٹری بھی ابھی ہائی الرٹ کے اوپر ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر ہے. ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے وجہ حال ہی میں ایک ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ 2 دن پہلے 22 اپریل کو کشمیر کے ایک علاقے پہلگام کی اگر آپ پکچرز دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ترین علاقہ ہے جس کو منی سوئٹزرلینڈ بھی بولا جاتا ہے. اس ایریا کے اندر کافی بالی ووڈ موویز کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے اور کافی لوگ یہاں کا بڑے شوق سے وزٹ کرتے ہیں. تو کچھ ٹورسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے. تو اس وقت کے اندر وہاں پہ کچھ ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے سب کو 1 بائی 1 آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کو مارا گیا. اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھیں تو یہ کافی سملر تھا جو BLA نے پاکستان میں بلوچستان کے اندر ٹرین کے اوپر کیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور صرف مردوں کو ٹارگٹ کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے. تو یہ ان دونوں کے اندر ایک سملر نظر آتی تھی. اور اگر آپ اس واقعے کی پکچرز دیکھیں, ایک پکچر تو بہت زیادہ جو ہے افسوسناک ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی انسانیت رکھتے ہیں تو بہت زیادہ افسوسناک ہے, کیونکہ ایک کپل جو 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کے سامنے وائف کے سامنے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا اور وہ اس کے بالکل پاس بیٹھی ہے. اور ایک اس کے اندر لوگوں کا مرڈر کیا گیا. اس کے اندر ایک ہائی کمیشن کے بھی ممبر موجود تھے جن سے پوچھا گیا اور پھر ان کو مار دیا گیا, اور ان کی وائف نے یہ کہا کہ اب مجھے بھی مار دو کیونکہ میرے اب جینے کی کوئی وجہ نہیں باقی رہی. تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ جا کے مودی سے بولو. تو یہ ٹوٹلی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا جو بھی اس کے پیچھے موجود ہے, اور ابھی تک اس کی کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی. ابھی تک جو سامنے آیا وہ صرف ایک ہی گروپ آیا, دی ریزسٹنس فورس گروپ. اس نے یہ اس کو ذمہ داری قبول کی ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں پتا, ٹوٹلی ان نون ہے. اس کے پیچھے نہیں پتا کون اس کو ڈیل کر رہا ہے, کون اس کو چلا رہا ہے. اور اس کے اندر وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ انڈیا کے اندر آرٹیکل 370 کے اندر بہت بڑی چینجز اور ڈیموگرافیکلی جو انڈیا چینجز لے کے آ رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ کیا گیا. اب ہمارا اس بات کے اوپر بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ہمارا جو ہے ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے پاکستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے کہ کچھ بھی اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام انڈیا کی طرف جاتا ہے. جیسے BLA کے اندر ٹرین کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے اندر بہت سے واضح ثبوت بھی نظر آئے جو کہ ملٹری نے بتائے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ BLA کو انڈیا واضح طور پر پیسے دے کر سپورٹ کرتا ہے اور ساتھ میں ویپنز بھی پرووائڈ کرتا ہے. اب انڈیا کے اندر ہوا تو وہ سیدھا الزام آیا پاکستان پہ. یہ اس کی وجہ کیا ہے پیچھے؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ آتی ہے یہ جو پورے ہمارے پاس آپس میں ہماری مذہبی نفرت چھوڑ کے گئے ہیں. سب سے پہلے تو وہ ہے جو کہ شروع سے یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. لیکن انہوں نے تو جو کیا وہ کیا, انہوں نے کافی دیر پہلے کر دیا تھا, لیکن دونوں سائڈوں سے بعد میں اس چیز کو باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کر کے اس کو بڑھایا گیا ہے, اس کو کم نہیں کیا گیا. پاکستانی ملٹری نے بھی انڈین ملٹریز کو کچھ اس طرح کی وجوہات دیں کہ آپ آئیں اور ہمارے اوپر الزام لگائیں, اور اسی طریقے سے انڈیا نے بھی پاکستان کو بہت سی وجوہات دیں ہسٹری میں کہ آپ آئیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائیں. اور یہ ایک دوسرے پہ ہی کیوں الزام لگاتے ہیں؟ پاکستان کے طور بھی بہت سے دشمن ہیں, انڈیا کے طور بھی بہت سے دشمن ہیں, لیکن یہ الزام صرف ایک دوسرے پہ لگائیں گے. انڈیا کی تو حال ہی میں ٹریڈ وار بھی, چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ وار چلتی ہے. ان کی وار چھوٹی سی تو چائنا کے ساتھ بھی ان کا کافی زیادہ پرابلم ان کے ساتھ بھی ہیں, لیکن ان پہ کبھی کوئی الزام نہیں آئے گا. کیا وہ یہ کچھ اس طرح کا نہیں کر سکتے؟ اور اگر پاکستان میں کچھ ہوتا تو پاکستان اور کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے گا, صرف انہیں کے اوپر لگائے گا. تو ابھی یہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے. ابھی کچھ لوگ کافی حد تک پچھلے وقت سے سمجھدار ہو چکے
चुके हैं, अब लोग सवाल उठाते हैं कि ये इसके पीछे वजह क्या है। अगर आप अभी इंडियन मीडिया देखें तो हाल ही में कुछ ये 2 दिन के अंदर आपको सारा ये नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं, और जिसके अंदर अफसोसनाक खबर ये भी है कि साथ में जो यूट्यूबर्स हैं और जो एंटरटेनर्स हैं वो भी अपना जो है व्लॉग्स और अपने शॉर्ट्स इसी बात के ऊपर रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया तो हमने बदला लेना है। अगर ये पाकिस्तान ने की है आपकी मेंटालिटी के मुताबिक कि उन्होंने वाइफ के सामने हस्बैंड्स को और उनके बच्चों के सामने उनके बाप को मारा है, अब आपने ये बदला लेना कि आप यहाँ पे आके किसी के बाप को मारेंगे बीवी और बच्चों के सामने, फिर एक सोचनाक वाकया आप क्रिएट करेंगे, तो क्या खुशी मिलेगी उससे। देखिए, 2 मिलिट्री का अगर आपस में ये क्लैश बना के उनके सामने पेश करना ये इंतहाई गलत चीज़ है। इसके अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस का होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होना। आपस में अगर आप 200 बंदा मार देंगे पाकिस्तान 100 मार देगा, आप 100 मार देंगे पाकिस्तान 200 मार देगा। चुप तो दोनों नहीं बैठेंगे ना, दोनों के पास कुछ ना कुछ है। फायदा किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ देखने वालों का। जब दुनिया के अंदर लोग बैठे हुए देखने, उनको देखने के लिए एडवेंचर मिलेगा, किसने इसको इतने बंदे मार दिए और उसने उसके, लेकिन फायदा किसी को कुछ नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा ओवरकम किया जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि अगर ये इंसिडेंट पाकिस्तान में और इंडिया में होते हैं तो हम लोगों का एक दूसरे की तरफ माइंड क्यों जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगाएं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने अपनी मिलिट्री के ऊपर भी क्वेश्चन उठाना है। अभी हाल ही में BLA ने अटैक किया था ट्रेन के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी और बताया था कि वो एरिया ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ पे रोड्स जो है अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए। तो मिलिट्री क्यों सोई हुई थी, उन्होंने उस एरिया को कवर क्यों नहीं किया? क्यों इस तरह के ईजी एरिया टेररिस्ट को देते हैं कि वो यहाँ पे आके इजीली अटैक कर सके? इसी तरीके के साथ आपका इंडियंस का भी आपके मिलिट्री से क्वेश्चन बनता है कि अगर पहलगाम इतना प्यारी जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड आप बोलते हैं, जिसके ऊपर इतने टूरिस्ट लोग आते हैं जहाँ पे, तो आप वहाँ पे आपने इतना उसको खाली क्यों छोड़ा हुआ था? वहाँ पे इतना ज़्यादा ईजी क्यों था कि कोई भी वहाँ पे आके ईजिली अटैक कर सकता है? वहाँ पे कोई भी अपनी बाइक्स के ऊपर आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अब आपका भी तो मिलिट्री से क्वेश्चन बनता है जिनके ऊपर आप बहुत सी सैलरीज, और हम बल्कि आप अपनी मिलिट्री पे, हम अपनी मिलिट्री पे सैलरीज आप लगाते हैं, कितना उनका हम खर्चा उठाते हैं। तो क्या उनको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए थी कि उस एरिया को कवर करके रखना है? और अगर उस एरिया की हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री के अंदर भी 1995 के अंदर जहाँ पे 4 टूरिस्ट को यहाँ पे मारा गया, उसके बाद 2000 के अंदर यहाँ पे अटैक हुआ, 32 लोगों को मारा गया, जिसके अंदर जो राहगुज़ीर लोग थे, मुसाफिर थे, गुजर रहे थे, उनको भी रास्ते के अंदर मारा गया। तो 4 अटैक अभी जो है वहाँ पे हो चुके हैं। तो आपके लिए वो एक पॉइंट था कि जहाँ पे आपको सिक्योरिटी अलर्ट रखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी थी नहीं। तो आपको पहले तो ये क्वेश्चन उठाना चाहिए ना कि आप इस तरह के पॉइंट्स देते क्यों हैं टेररिज्म को कि वो वहाँ पे आके अटैक कर सकें। यही सेम क्वेश्चन हम अपनी मिलिट्री से उठाते हैं और उठाया था और अभी भी उठाएंगे कि आप इस तरह के कोई भी पॉइंट्स टेररिज्म के लिए ना छोड़ें कि जहाँ पे उनको आके आसानी से हमला करने की सहूलत मुयस्सर हो। तो सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो हमें मजहबी नफरत कम करने की ज़रूरत है। आपस में ये हिंदू, मुसलमान, सिख या कोई भी मसीही है, हम इंसान पहले हैं। मैं तो इस वाक़े को बहुत दिल से कंडेम करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि आप एक बाप को या एक हस्बैंड को उसकी फैमिली के सामने आप मारें, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये इसके ना किसी भी तरीके से इसकी हमायत नहीं की जा सकती। इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये ये आपस में करना और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री दोनों एक बहुत अच्छी और ताकतवर और बहुत एक वसी मिलिट्री है। इनके पास 300 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का बताया जाता है कि इनके पास मौजूद है, और अगर ये इस खत्ते के अंदर चला देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, तो साइंटिस्ट के मुताबिक जो उनके इंकशाफात हैं, जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं कि इस एरिया के अंदर क्या होगा, वो शायद सुन के आप रह भी नहीं सकते। कई सालों तक यहाँ पे सूरज नहीं निकलेगा, यहाँ पे खुराक की किल्लत आ जाएगी, ज़मीन के अंदर जो खुराक की पैदावार है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल कुछ सालों के लिए। कहने के बहुत बड़ा यहाँ पे लूप होगा कि कोई यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिसके बाद किसको फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा, हमें होगा, किसको होगा फ़ायदा? तो मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर आपस में ये चीज़ें हैं तो इसको अगर मिल बैठ के सॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से कुछ हुआ है और आपके पास बिल्कुल अच्छे एविडेंस हैं तो आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे अपना मुकदमा रखें, सारे आप वहाँ पे अपने एविडेंसेस रखें और उनको ब्लेम करें। आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो किस बिना के ऊपर आप रिपोर्ट करते जा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि ये उसने किया तो उसने किया, यानी कैसे आप कर रहे हैं? और मैं देख रहा हूँ, मैंने कल से देखा है और बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत ही ज़िम्मेदार अफराद जो हैं ये बात कर रहे हैं कि जी जज्बाती नहीं होना, उनसे बदला लेना है। भाई बदला किन से लेना है? आप बदला लोगे तो ये भी आगे से कुछ करेंगे। दोनों चीज़ों ने कुछ कर दिया तो फ़ायदा किसका है? फ़ायदा सिर्फ दूसरे लोगों का है जो बैठ कर तमाशा देखेंगे हमारा। हमें आपस में एक होना चाहिए, हमें आपस में मिलके, ठीक है कंट्रीज़ हमारे डिफरेंट हैं, कंट्रीज़ हमारे अलग हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचने के लिए ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हिस्ट्री में हमारी आपस में वार्स हो चुकी हैं 65 में,
में 71 में, और उसके बाद जो कुछ छोटे मोटे अटैक्स हो चुके हैं, उसके बाद हमने क्या हासिल किया? आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानों का ज़या किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जैसे 1965 जनरल अयूब ने कहा था, कुछ कश्मीरियों के लिए मैं पाकिस्तानी करोड़ों अफराद की जान खतरे में नहीं डाल सकता, कि जब हम वार की तरफ जाते हैं, जब हम जंग की तरफ जाते हैं, तो आम लोगों की जान खतरे में होती है। मरना उन लोगों ने होता है, मरने के बाद फिर आपने आराम से बैठना है। तो जरूरी नहीं है कि अभी आराम से बैठ के आपस में बातचीत कर ली जाए, कुछ कानून बना लिए जाएं, कुछ आपस में बैठ के कर लिया जाए और पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि जिम्मेदार कौन है। अभी तक यही नहीं पता चला कि इसका बेसिकली जिम्मेदार कौन है, ये किया किसने है। ना पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बयान कर सके, और ना इंडिया के पास मौजूद है। तो एक दूसरे के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया, और कुछ लोग बाज़-औक़ात कंपैरिजन करते हमें नजर आते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री एक होती, या हमारी क्रिकेट टीम एक होती, या हम मुल्क एक होते, तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम होते, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हमारी होती, दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन हम होते। जब आपको ये सब पता है तो क्यों आपस में लड़ लड़ के इतना कमजोर होते चले जा रहे हो? लड़ाई से कभी कुछ नहीं बना। यूरोप आपके सामने है, कितनी लड़ाइयाँ की इन्होंने हिस्ट्री में, आज एक होके बैठे हैं और तरक्की कर रहे हैं। अमेरिका ने हिस्ट्री में जाके देख लें कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन आप बाद में जाके इन्होंने आपस में नेटो फोर्सेस बनाई और आज आप देख लें कि वो कितने ज्यादा खुशहाल हैं और तरक्की की तरफ ही चल रहे हैं सिर्फ। तो तरक्की पीसफुल एनवायरनमेंट से आती है, तरक्की एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से नहीं आती। तो ये जो लोग आपस में बैठ के, जो यंगस्टर हैं, वो तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें ना कि जंग से और वार से एक दूसरे बदला लेने से क्या है। आपके पास एविडेंस नहीं है, अगर है तो आप उसको पेश करें। यही बात मैं पाकिस्तान से कह रहा हूँ। तो पीसफुल रहना चाहिए, आपस में लड़ाइयों को और इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए। अभी तक जो मीडिया ने सारा इसके अंदर किरदार अदा किया, अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि मीडिया जो बता रहा है कि 4 बंदे जो वहाँ पे आए थे, उनमें से एक का नाम आसिफ, एक का नाम सुलेमान और एक का नाम अबू तलहा है, जो वहाँ पे एंटर हुए। यानी इसके पीछे एविडेंस कोई नहीं है, रीज़न उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट किया जा रहा है। और किस एरिया के अंदर से दाखिल हुए वो एरिया भी साथ में बताया जा रहा है कि यहाँ से वो आए, इस तरीके के साथ किया। तो देखें, अगर आपके पास इस बात का टोटल एविडेंस मौजूद है तो आपको प्रॉपर तरीके के साथ इसका केस फाइल करना चाहिए। ये मीडिया जो है ये बहुत खतरनाक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनकी बात समझ में आती है, वो मीडिया के खिलाफ बहुत बोलते हैं। तो मीडिया के खिलाफ अगर बोलते हैं ना, तो उसके पीछे एक वजह है, अभी हमें समझ आती है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, मीडिया कुछ भी कर सकता है, ये लोगों को जज्बाती कर देता है। अभी इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था, लेकिन इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिमिट क्रॉस की हुई है। यानी उसके पीछे वो ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, सैड है, हम उसको दिल से कंडेम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोसनाक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार बार यही कहूँगा, उसका इन्फ्लुएंस लोगों को क्या डालना है, वो ये डालना है कि ये इस तरीके के साथ ये पाकिस्तान ने किया है, अब हमने इसका बदला लेना है। सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा है, इंडियंस को वो आंखें थोड़ी सी गीली करके, तो उसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर एक बदले की आग है। भाई कौन सी बदले की आग है? क्या करना आपने? आपका उधर वहाँ पे ये लोग मारे गए हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। यहाँ पे मारे गए थे BLA के अटैक के दौरान, 55 से 60 अफराद यहाँ मारे गए थे, वो भी बहुत अफसोसनाक था। वो भी इंसान थे। इंसान पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर मारा जाता है तो हमें उसका अफसोस ही करना चाहिए। किस बदले की आप बात कर रहे हो? आप अगर आपके पास एक इन्फ्लुएंस है लोगों का, अगर आप लोग आपको देखते हैं, तो आप ये क्या उनको डिलीवर कर रहे हैं? पीछे एक बैकग्राउंड साउंड लगा के, उसको सैड बना के, आंखें थोड़ी सी गीली करके, और आप आगे से ये बयान कर रहे हैं कि जी हमारे अंदर बदले की आग है, हमने सिर्फ बदला लेना है। आप पहले डिफाइन कर लें वो है कौन, डिसाइड कर लें, देन उसके बाद आप बदले की तरफ जाएं। बदला लेकर फिर उसको पीस की तरफ लेकर आएं, क्योंकि जब आप किसी से बदला लेते हो तो डेफिनेटली आगे से वो भी अटैक बैक करता है। लेकिन अटैक होने से हासिल क्या हुआ है? मैं फिर यही बात करूंगा, मिला क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का भी ज़ाया होता है, वक्त का भी ज़ाया, और सबसे अहम इंसानियत का ज़ाया। आम लोग जो हैं वो सिर्फ मारे जाते हैं, और बाकी मिलिट्री ग्रुप्स वो फिर उसी तरीके के साथ अपने अपने ऑफिस के अंदर उसी तरीके से बैठ जाते हैं। तो भाई ये खेल ना खेलें, इस तरीके के साथ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने पहले देखी हैं, सारी देख के मैं फिर ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप भी ये देख रहे होंगे कि बदला हर साइड पे किया जा रहा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री भी पिछले 2-3 से हाई अलर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो हाई अलर्ट है। तो ये चीज़ें, हम इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि इनका किसी किस्म का आपस में क्लैश हो, किसी किस्म का भी, क्योंकि आम लोगों ने मरना है। दोनों कंट्रीज आपस में एक थे, कुछ सालों से अलहदा हुए, और आज लड़ के आपस में मर रहे हैं, और पूरी दुनिया को जो अपना शो दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इन मामलात को टेबल टॉक के जरिए आपस में आराम से बैठ के एक पीसफुल एनवायरनमेंट के जरिए इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लड़ाई के बाद भी आपने पीसफुल मुआहिदा ही करना है। जितनी भी आप दुनिया में लड़ाइयाँ देख लें, बहुत लोग मारे, लाखों मारे, कईयों ने बहुत ज़्यादा मारे, लेकिन एट द एंड एक पीसफुल एग्रीमेंट की तरफ आते हैं। तो इतना मर मरा के आपने पीसफुल एग्रीमेंट की तरफ
आना है आप पहले ही आ जाएं। ये बात ठीक नहीं है कि आपस में इसको मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर जब आपस में क्लैश करेंगी तो दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फ़ायदा होगा सिर्फ देखने वालों का, फ़ायदा और किसी का भी नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। आगे ही दोनों मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो वो तो काफ़ी सालों से है, और अभी मिलिट्री की भी आप कशीदगी को बढ़ाने के लिए मीडिया बिल्कुल अव्वल किरदार अदा कर रहा है, और साथ में जो सोशल मीडिया वो तो नंबर 1 पे है। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए और इसके ऊपर थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि हमें इसके ऊपर क्या स्टांस देना है। इंसिडेंट बहुत अफसोसनाक है, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर कहीं पे ऐसा मौका है कि एक फैमिली के सामने उसके फैमिली के सरबराह को, जिसको हम उसका वालिद या शोहर बोलते हैं, उसको मार दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ-देह बात है। अगर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमोशंस को भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बात के बाद ये कहना कि हमने बदला लेना और इसी तरीके के साथ हमने अगले को मारना है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपस में बैठ के टेबल टॉक के जरिए पहले डिफाइन कर लिया जाए कि असल इसका जिम्मेदार कौन है, उस जिम्मेदारियों की वजह क्या है, फिर बैठ के एक कानून बना के इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, जो कि दुनिया ने किया है, जो हमें आज तक नज़र आता है। आपस में ये जो बदले की आ गई, ये हमें इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच।